डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के टिपिकल और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू एक्सप्लेन करता हूं फ्रॉम सीयूटी पर्सपेक्टिव. This will definitely help you in attempting the CUT paper as all questions are technical and it will help you in grasping the concept. So let's start the question without wasting the time. These are in the range of 30 odd questions on just fundamentals. I will daily bring questions on partnership, fundamentals, valuation of goodwill and rest of the chapters. Now comes the first question. In case of fixed capital system, the interest on drawing is credited to. अब यहाँ पे हमने वर्ड यूज कर दिया फिक्स कैपिटल सिस्टम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहे हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट कहाँ पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. कंफ्यूजन क्या दी थी क्रिएट करने के लिए? फिक्स कैपिटल सिस्टम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. जनरली स्टूडेंट्स को रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिक्स कैपिटल करंट अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट टेक कर देंगे. बट क्वेश्चन इज आस्किंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज credited to, because what we pass an entry is current account debit to P&L appropriation. Means just a question on focus and nothing else. Now comes the next question. In case of fixed capital system, interest on loan taken from partner is debited to. Now interest on loan is charged against the profit. And now question हमको बोल रहा है फिक्स कैपिटल सिस्टम. इन वर्ड्स की तो मेरे लिए कोई रेलेवेंसी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन तो चार्ज अगेंस्ट कैपिटल है और चार्ज अगेंस्ट कैपिटल डेबिट कहाँ होगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में. इतना सिंपल. आगे बढ़ते. In case of fixed capital system, drawing against capital is debited to. Now what's the question says? Fixed capital system, and what's the requirement? Drawing against capital. Under fixed capital system, drawing against capital is debited to the capital account, because drawing against profit goes to the current account. And appropriation में हमारा जाता है interest on capital और interest on drawing, और जो क्वेश्चन हमसे पूछ नहीं रहा है. Now comes the next. Which one is odd one out? Interest on capital, salary to partner, net profit to partner, interest on drawing. Now all these are the appropriation of the profit, but these three elements are debited to P&L appropriation account, and this aspect is credited to P&L appropriation account. Hence the odd one is your D. सिंपल है. अभी जस्ट एक ब्रीफिंग के लिए, उसके बाद यू विल फाइंड मोर टेक्निकल क्वेश्चन. In case of fluctuating capital system, interest on capital is computed on opening balance of capital account, additional capital, drawing against capital, all of above. While computing interest on capital, हमको opening balance भी चाहिए होता है. If a partner has introduced additional capital भी चाहिए होता है, हमको drawing against capital भी चाहिए होता है. It means चाहे fixed system हो चाहे fluctuating system हो, interest on capital is computed based on all these three items. Hence the answer is all of above. Interest on drawing is computed against drawing against capital, drawing against profit, drawing against capital profit, drawing in excess of capital. Interest on drawing is computed on a drawing against profits, because drawing against capital जो है, it goes while calculating interest on capital. ये तो simple questions थे. Now comes the little bit more technical one, which you will definitely find interesting. Partner firm has three partner ABC sharing profit loss in the ratio of 2 to 1. Their opening capital is 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh respectively. Partners are entitled to interest on capital at 10% per annum. The profit earned by firm is 30,000. On the face, it seems a simple question to the students. First they will compute interest. बोले इंटरेस्ट हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, प्रॉफिट लॉस आएगा प्लस माइनस कर देंगे, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी. बट
व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट वो मैं आपको समझाता हूँ. व्हाट्स अ टोटल कैपिटल? टोटल कैपिटल इज 6 लाख रुपीज. इंटरेस्ट इस पे कितना आएगा? एट द रेट ऑफ 10% इट कम्स टू 60,000. और हमारा प्रॉफिट कितना है? 30,000. Thus, in case of inadequate profit, vis-a-vis interest on capital, profit is divided not in the PSR but in the interest ratio, which is as good as capital ratio. It means in this case, this 1 lakh will be divided in the ratio of 1:2:3. Now इसको हमने डिवाइड करा, 6 से डिवाइड करा, कॉमन फैक्टर 5 आ गया. 5, 10, 15. Now the closing opening कितनी थी? कि 1 lakh, 5 lakh ऐड करा 1 5, 2 lakh ओपनिंग थी ऐड करा 10,000 टू 10, 3 lakhs थी ओपनिंग टू 3 lakhs थी, प्रॉफिट ऐड करा 315. द आंसर इज दिस वन. दिस इज ओनली अ प्रेजेंस ऑफ माइंड कि सिंपली अपने को ये P&L अप्रोप्रिएशन बना के कैपिटल अकाउंट वर्कआउट नहीं करना. वी नीड टू सी द क्वांटम ऑफ इंटरेस्ट vis-a-vis the profit earned by the firm. Now comes the next question. In case of fixed capital system, while calculating interest on capital, opening capital is calculated as under. Drawing is added. हम ये क्या बात कर रहे हैं? फिक्स कैपिटल सिस्टम. फिक्स कैपिटल सिस्टम में हमारा रिलेशनशिप क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस प्रॉफिट, माई मिस्टेक, प्लस एडिशनल माइनस ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल. नाउ ड्राइंग इज एडेड, प्रॉफिट, ये रूल आउट हो गया, ये रूल आउट हो गया, ये रूल आउट हो गया. दिस इज द आंसर. ड्राइंग एंड प्रॉफिट इज इग्नोर्ड बिकॉज in the absence of any specification, drawing is treated as a drawing against profit and it's not taken into consideration while calculating the opening capital. A and B are sharing profit and losses equally. Firm earned a profit of 50,000. Interest on capital at 10% amounts to 10,000 for A, 20,000 for B. A introduced 50,000 as additional capital during the mid of the year. We need to find out the closing capital of A. अब यहाँ पे हमको ओपनिंग भी नहीं गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल. नाउ हाउ टू फाइंड आउट एज अर्ली एज पॉसिबल, आई एक्सप्लेन यू. हमको यहाँ पे टोटल कितना उसने एडिशनल कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस करी है मिड ऑफ द ईयर में? 50,000. एक ही बात कर रहे हैं. इसका मतलब उसको 50,000 पे इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 2,500. उसको टोटल कितना मिला है? 10,000. इसका मतलब जो रिमेनिंग इंटरेस्ट है, वो रिमेनिंग इंटरेस्ट उसको किस कैपिटल पे मिला होगा? ओपनिंग कैपिटल पे. तो रिमेनिंग इंटरेस्ट कितना आ गया? इतना आ गया. और ये ओपनिंग कैपिटल पे मिला होगा. तो ओपनिंग कैपिटल हमारी कैसे आ गई? क्योंकि तो पूरे साल रही है, तो हमने इसको 10% से डिवाइड करा. मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई 75,000. अब नाउ क्वेश्चन सेज फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल. नाउ ओपनिंग ए की कितनी थी? 75. वेरी गुड. नाउ ही बॉट्स 50,000 एज एडिशनल कैपिटल. ये हो गई आपकी 125. अब हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं. 50,000 मेरा टोटल प्रॉफिट था, उसमें इंटरेस्ट ए को कितना चला गया? 10,000. बी को कितना चला गया? इट मीन्स जो रिमेनिंग नेट प्रॉफिट है, इट रिमेन्स टू हाउ मच? 30 में से गए 50 में 30 गए 20, 10,000, 10,000. इसका मतलब ए को 10,000 IOC मिला है,
ए को 10,000 नेट प्रॉफिट मिला है, तो हमने यहाँ पे आईओसी ऐड कर दिया 10,000 रुपीज़, यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया 10,000 रुपीज़, तो द टोटल एक जीरो फालतू लग गया, द टोटल कम्स टू 145. नाउ दिस इज द आंसर. So you see how what is more important is to attempt MCQ as early as possible. हमने सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करा, 50,000 एडिशनल है मिड ऑफ द ईयर, उस पर हमने इंटरेस्ट अप्लाई करा फॉर द 6 months. This give us the interest for the on additional capital. Then we work out the remaining interest, 10,000 में से 25 गए. This is on the opening capital. Accordingly I find out the opening capital. ओपनिंग कैपिटल पे मैंने एडिशनल ऐड करी, टोटल कैपिटल आ गई, एप्रोप्रिएशन बनाया, आईओसी एनपी दिया, ये आंसर आ गया. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B are sharing profit and losses equally. Firm earn a profit of 50,000. Interest on capital 10,000. A withdraw against 50,000 the closing capital of A. ऊपर वाले क्वेश्चन में पॉइंट था पार्टनर ब्रिंग द एडिशनल कैपिटल. Here what is important? A has done the drawing against capital of 50,000 during the mid of the. It means हम सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे. 50,000 10% इंटू 6/12 वॉट इट इज. इसका मतलब ये इंटरेस्ट पार्टनर को साल भर में कम मिला, साल भर में, क्योंकि उसने विड्रॉ करा था. टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है? 10,000. इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल ये हमारा कितना हो गया? इट्स बेसिकली 12,500. टोटल मिला के 10 मिला है. नाउ व्हाट इज द कैपिटल? इंटरेस्ट 10%. इट मीन्स मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 1,25,000. अगेन वी नीड टू फाइंड आउट दी क्लोजिंग कैपिटल. तो हमने यहाँ पे 125 ओपनिंग ऐड करी, उसने 50,000 का विड्रॉ करा, 75,000 क्लोजिंग कैपिटल आ गई, उसका आईओसी 10,000 हो गया. अगेन हमने जो एप्रोप्रिएशन बनाया था वो सेम बना ऊपर, ये उसका आईओसी हो गया, ये उसका नेट प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपीज़. तो मीन्स टू क्लोजिंग कैपिटल इज 95,000. सेम लॉजिक पे दो क्वेश्चन है, एक एडिशनल कैपिटल, एक विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल. तो आई होप आपको ये क्लैरिटी आ रही होगी. किसी को कोई स्टूडेंट्स को डाउट आता है, दे कैन व्हाट्सअप मी and I will explain them in personally. Now comes the next question. I hope you are finding this question to be interesting. A and B are sharing profit loss equally. Firm earned a profit of 60,000. The interest on capital at 10% amount to this. B withdraw 50,000 at the mid of the year. The closing capital of B. ये क्वेश्चन सेम है. मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूं. मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, आंसर शीट में नीचे है, तो आप चेक कर लेना, क्योंकि सेम पैटर्न पे इसका आंसर जो है वो सी है. बट कैसे या वर्कआउट करना, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, बिकॉज सेम क्वेश्चन है, तो नीड नॉट वेस्ट टाइम ऑन डूइंग द सेम क्वेश्चन. Now comes another question. Mr. A withdrew 5,000 at the beginning of every month and Mr. B withdrew against capital 10,000 at the beginning of every quarter. The interest on drawing is 3%. What is important is here question says 3%. क्वेश्चन हमको ये 3% पर एनम नहीं बोल रहा है. सेकेंडली ए ने कितनी ड्राइंग करी है? 5,000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ. उसकी टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? हम उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया हमारे पास? 60,000. बी ने विड्रॉ करा अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग related to the P&L appropriation. Drawing against capital is not taken into consideration for computing interest on drawing. Drawing against profit is considered, which is in the case of A. Now what is more important? Question says calculate interest on drawing at the rate of 3%. यहाँ पे मुझे सिंपल 60,000 पे
3% अप्लाई करना है, मुझे 6.5/12 यूज नहीं करना है क्योंकि रेट पर एनम नहीं है, which comes to 1800. Answer is 1800. Next question. When drawing is made at the beginning of a month for a year, average period for interest in drawing is calculated. It's a simple, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है. Next question. There is a provision in the partnership for interest on capital. In case of profit being less than interest amount, profit will be distributed in a profit sharing ratio, no. Equally, no. Capital ratio, yes. अभी हमने क्वेश्चन भी किया था, उसका इस तरह से भी एक एमसीक्यू बन के आ सकता है. इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू द करंट अकाउंट, डेबिटेड टू द क्रेडिट पीएनएल अकाउंट. क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है लोन गिवन बाय फर्म टू दी पार्टनर. यहाँ पे ये ऑप्शन गलत थोड़ी सी मुझसे टाइप हो गई है. इट्स पीएनएल अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है. इट्स एन income for the part, it's an income for the business and it's not a part of appropriation because it's a loan. It will be credited to the P&L appropriation account. Profit loss appropriation is a period statement, position statement, neither of offer depends. Profit loss account and profit loss appropriation is prepared for the year, hence it's a period statement. Profit loss account shows profit or loss, profit earned by the business or loss incurred by the business for a period. Profit loss appropriation shows profit or loss appropriation among the partner for a profit earned by during the year. A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They omitted to provide interest on capital 15,000, 7,500 and distributed the profit of 90,000. How much amount of profit has been distributed in a wrong proportion? इसमें अगर हम एक सिंपल सी बात समझें, टोटल प्रॉफिट कितना था? 90,000. आईओसी का एलिमेंट कितना है? 22,500. रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 67,500. आईओसी का जो प्रॉफिट है, हम आईओसी का प्रॉफिट देना भूल गए. तो अगर हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी करते तो किस रेशियो में करते? हम देना भूल गए आईओसी में. ये आईओसी निकल के आ रहा है. ये तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हमने पीएसआर में बांटा ही होगा. अब हमने गलती क्या करी है? हम आईओसी देना भूल गए. इट मीन्स दिस मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट was also distributed in a PSR. हमारी PSR कितनी गिवन है? 2:1. और अगर हम इसको 2:1 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा? It means by omitting to give IOC to the partner, the profit has been distributed in a correct ratio. Hence the answer is A. Means IOC नहीं दिया तो भी उनको प्रॉफिट उतना ही मिला है जितना उनको आईओसी मिलना चाहिए था. Now comes the next question. A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They omitted to provide interest on capital and distributed the profit. How much profit has been distributed? Now here हमने दोबारा से सेम कॉन्सेप्ट समझा. 90,000, 30,000 एक जो आईओसी का टोटल है, रिमेनिंग 60,000. अभी जो 30,000 का ये मेरा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट पार्टनर्स को किस फॉर्म में मिलना चाहिए था? आईओसी की 10,000, 20,000. बट व्हाट मिस्टेक वी कमिटेड? हम इस प्रॉफिट को भी आईओसी देने की जगह पीएसआर में बांट गए. कितना बांट गए? 20,000 एंड 10,000. It means
30,000 amount of profit has been distributed in a wrong proportion. Now comes the next question. A, B, C, D are partner sharing profit and loss in the ratio of 4:3:1. By mistake, they distributed the profit of 120 in the ratio of 5:2:1. Which partner has been affected due to said wrong distribution? अगर हम यहाँ पे रेशो देखें, अगर हम यहाँ पे रेशो देखें तो कितनी आ रही थी? 4:3:1। नई रेशो कितनी आ रही है जो हम गलत रेशो में बांट गए हैं? इसका मतलब इसका टोटल 10, इसका टोटल 10। इसका मतलब इन दोनों को तो प्रॉफिट सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ए और बी को प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बिकॉज ए को मिलना चाहिए था 4/10 जो हमने दे दिया 5/10, बी को मिलना चाहिए था 3/10, हमने बी को कम दिया। हेंस द आंसर इज 9, ए एंड बी। Now comes the next question. A and B commence business on 1/7/19 PSR 3:2 with a capital of 1 lakh and 2 lakh and close their books on 31st March 20. They earn a profit of 5 lakhs and distributed the same in the ratio without providing for interest on capital at 5%. How much profit is distributed in a wrong proportion? अब यहाँ पे हमको एक चीज समझनी है, पार्टनर ने बिजनेस कब कमेंस करा, उनका ईयर कब एंड हो रहा है, इट मींस उनको जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था? 3 लाख की कैपिटल है, कोई एडिशनल नहीं है, कोई ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं है, इंटू 5% इंटू 9/12। तो इसको हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 इंटू 3/4। इसको हमने अगर डिवाइड करा 3750, इसको से मल्टीप्लाई करा तो 11,000। हमने इतनी स्पीड से कैसे करा? 3000 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9000 आ गया। 750 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा आ गया 2250। 2250 इसमें ऐड कर दिया 11,250। इट मीन्स दिस मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रॉन्ग प्रपोर्शन, क्योंकि यहाँ पे पीएसआर कितना है? 3:2। तो ये जो प्रॉफिट है हम पीएसआर में बांट गए, जो कि बटना चाहिए था 1:2 में। दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट which has been distributed wrongly. Which one is odd? With reference to partnership deed, simple question. Partners are entitled to salary, not to waste time on this aspect. ABC are partner sharing profit in the ratio of 3:2:1. Partner wrongly provide interest on drawing 6,000, 4,000, 2,000, which is not required as per deed. Which partner was benefit due to this error? अब यहाँ पे भी हम समझते हैं, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को रॉन्गली दे दिया है। इफ वी मेक अ स्टेटमेंट स्पीडली, व्हाट विल हैपन? हम उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस ले लेंगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस ले लिया। ये अमाउंट हम उसको प्रॉफिट में बांट गए थे, वो प्रॉफिट भी वापस ले लेंगे। तो प्रॉफिट कितना लेंगे? प्लस 6,000 पीएसआर में, प्लस 4,000, प्लस 2,000। It means by doing this error, none of the partner was benefit due to this error. Now comes the next question. ABC are partners sharing profit losses equally. A has given loan of 1 lakh. After close, it was discovered that interest on loan has not been provided for FY 21-22. Which account would be debited in FY 22-23 to rectify this error? In accountancy, the past year error which has affected the profit is not going to allow to affect the current year profit. लास्ट ईयर हम लोगों को कितना इंटरेस्ट देना था? 1 लाख रुपए का लोन है, 1 लाख रुपए पे कितना देना था? 6%। कितना हो गया? 6,000। हमने ये इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करा,
टू दैट एक्सटेंट पार्टनर्स को प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया। नाउ दिस ईयर व्हाट वी विल डू टू रेक्टिफाई दिस एंट्री, हम यहाँ पे पार्टनर्स को डेबिट करेंगे इक्वली। मीन्स अगर हम एंट्री बनाएंगे FY22-23 में ABC2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था 6000, 2000, 2000, 2000, hence this is the correct answer because हम लास्ट ईयर का एक्सपेंस विच वी ओमिटेड टू प्रोवाइड उसको करंट ईयर के पीएनएल में डेबिट नहीं करती है। पीएनएल मीन्स पीएनएल रिफ्लेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नॉट प्रॉफिट फॉर ऑल प्रीवियस ईयर्स। आई होप आपको इन क्वेश्चन में जेन्युइनली इंटरेस्ट आ रहा होगा। मतलब दिस ऑल क्वेश्चंस हैव बीन डेवलप बाय मी, तो मैंने कोशिश पूरी करी है कि इस क्वेश्चंस में मैं आपको बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस इन स्पीड वो मैं आपको गाइड कर सकूं। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। A withdrew rupees 10,000 at beginning of every month. The interest on drawing is 12% per annum. यहाँ पर annum लिखा है। Interest on drawing was wrongly computed at 9,000. What is effect on A capital due to this error? हम एक चीज समझते हैं, पहले हम निकालते हैं करेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। करेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया, टोटल ड्राइंग इतनी हो गई इंटू 12% इंटू 6.5/12, इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम्स टू 7800। अगर हम इसको करेक्ट बनाते तो कैसे बन के आता है, ABC, ए को हम डेबिट करते 7800 से, फर्म का इतना प्रॉफिट हो जाता, ये प्रॉफिट सब पार्टनर्स को 26 बढ़ता। इसका मतलब ए को जो नेट डेबिट होता, ए को नेट डेबिट कितने से होता 52 से। अब हम गलती क्या कर गए, हमने आईओसी कितना निकाल आईओडी सॉरी कितना निकाल लिया, पार्टनर्स को कितना 9000 एप्रोप्रिएशन में 9000 का प्रॉफिट हो गया, 3000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका मतलब हमने ए को 6000 रुपये से डेबिट कर दिया, होना कितना चाहिए था 5200 से। इट मीन्स बाय कमिटिंग दिस एरर ए हैज बीन एक्सेस डेबिटेड बाय 800। ABC are partners sharing profit and losses equally. A withdrew 1 lakh, interest on drawing is 12%. The interest on drawing was computed at what is the effect on B capital? वहां पे हमने A कैपिटल की बात की थी, यहाँ B कैपिटल की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, A withdrew 1 lakh, यहाँ पे टाइम फ्रेम दे रखा था, यहाँ टाइम फ्रेम कुछ नहीं दे रखा है। तो ऐसे में हम लोग जो इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे निकालेंगे, 1 lakh इंटू 12% इंटू 6/12, इट्स कम्स टू 6000। मीन्स जो करेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था ऑन दी एज कैप एज ड्राइंग 6000। तो करेक्ट हम अगर ट्रीटमेंट करते तो ट्रीटमेंट क्या होता, करेक्ट ट्रीटमेंट को ए को 6000 से डेबिट करते, सारे पार्टनर्स को 2000 रुपये से क्रेडिट कर देते। हम गलती क्या कर गए हैं, रॉन्ग चीज क्या कर गए हैं, हम आईओसी कितना ले गए हैं 9000, हमने यहाँ कितना कर दिया है +3 +3 +3। इसका मतलब ए को हमने 3000 रुपये से क्रेडिट कर दिया है, डेबिट क्रेडिट कितने से होना चाहिए था 2000। तो आंसर इसका क्या है, एक्सेस डेबिट बाय 1000 रुपीज। ABC are partner sharing profit loss in the ratio of 2:2:1. A and B guarantee in the ratio of 3:2 that C share of profit including his salary will not be less than 120. It means जो C को हमने
शेयर ऑफ प्रॉफिट की गारंटी दी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट की गारंटी वो कितनी दी है? 70,000। अब हमको बताना है व्हाट इज द नेट शेयर ऑफ ए। अगर हम लोग अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाए 3 लाख रुपीज, हमने सी को सैलरी दे दी 50,000, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? ए बी सी कितना आ गया? 250। 250 को हमने 2 to 1 में डिवाइड करना है, तो हमारा कितना आ गया? 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, 50,000। सी का शॉर्टफॉल कितना पड़ रहा है? 20,000। 20,000 हमने इसको दिया, गारंटी किस रेशो में दी है इन्होंने? 3:2 की रेशो में दी है, तो 20,000 को 3:2 में करा 5, तो यहाँ पे आ गया -12,000 -8,000। तो ए का प्रॉफिट कितना आया? 88,000। आंसर इज दिस। तो what more important is required to attempt all these MCQ? You have to have a good command over the basic mathematics. A and B started business on this date, sharing profit in the ratio of 3:2, and close their books of account on this. They are closing their books of account for 9 months. A introduced a capital of 5 lakhs on 1/5, which increased to 7 lakhs on this date and makes drawing. Seems a simple question, nothing technical. It's only about the how early you can do. On 1/5/20 A capital कितनी लेके आया? 5 lakh rupees. On 1/10/20 capital increased to 7 lakh. On 1/12/20 he withdraw 1 lakh, capital becomes 6 lakh rupees. This capital remain for 5, 6, 7, 8, 9. This capital remain for 5 months. This capital remain for 2 months. This capital remain for 1 month. Now if you compute the total, it comes to 25 lakhs, 14 lakh, 6 lakhs. 20 ये हमारा कितना हो गया? 45। अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो 45 लैक्स इंटू 12% इंटू 1/12, ये हमारा काटा, आंसर हमारा 45,000। It's a simple question, nothing technical. It's only to check your speed in doing calculation. ये क्वेश्चन भी सिंपल, नथिंग टेक्निकलिटी, इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा यहाँ पे, जस्ट बिकॉज दिस क्वेश्चन रिक्वायर लिटिल बिट स्पेस, सारा ओपनिंग निकालना है। इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ, यू डू इट। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट, लेट मी नो। ट्वेंटी एट का आंसर ये, यू कैन डू इट, यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम। A and B started business with a capital of 5 lakhs, 6 lakhs respectively. Interest on capital is 6% per 6 months. में सिंपल बात है भाई, 6% पर 6 मंथ्स का मतलब कितना हो गया दोस्त? 12% पर एनम। कंप्यूट ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज ऑन, मींस बिजनेस कब स्टार्ट करा? 1/4/20 को। अकाउंट्स बुक्स कब क्लोज हो रही है? दिसंबर में। ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है, सिंपली 5 लाख इंटू 12% इंटू 9/12, इट कम्स टू 45,000। जस्ट छोटा सा मैथमेटिक एस्पेक्ट था और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। 30 क्वेश्चन अभी मेरे में थोड़ा एरर था, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा, आगे लेके आता हूँ 31st। अगेन little bit technical question, you will find interest. A and B started business on 1/4/20 with a capital of 1 lakh on 1 lakh and 150 respectively. They agreed to provide IOC at the rate of 12% per annum. On 30th 9/20, it was decided that partners should either withdraw and reduce capital so that their IOC on this date should be 18,008. What was the adjustment in capital on this date? Seems technical, but अगर simple way में करें, nothing technical. Let's come to the A. A की opening capital कितनी है? 1 लाख। अब अगर हम कुछ भी एडजस्ट, इंटरेस्ट चाहिए कितना? A को 18, इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%।
मीन्स ए के केस में उसको ओपनिंग पे एटलीस्ट 12% तो मिला है, विच कम्स टू 12,000। अब हमें इसको 6,000 इंटरेस्ट और देना है, तो मीन्स ही हैज टू ब्रिंग एडिशनल कैपिटल। अब वो कब लेके आएगा? मिड ऑफ द ईयर में। इट मीन्स इंटरेस्ट रेट बिकम्स हाफ। मीन्स अगर हम सिंपल बोले वो एक्स अमाउंट कैपिटल लेके आया है, तो एक्स इंटू 12% इंटू 6/12 इक्वल्स टू 6,000। ये मैथमेटिक्स अप्लाई कर ले। अगर हम x को सॉल्व करेंगे तो 6,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 इट कम्स टू 1 लाख। इसका मतलब ए को 1 लाख की कैपिटल लानी है, पहला पॉइंट तो सिंपल हो गया। बी की कैपिटल कितनी है? 150। और अगर हम यहाँ पे 150 पे इंटरेस्ट निकाले 12%, हाउ मच? इट कम्स टू 18,000। मीन्स बी हैज टू नाइदर विड्रॉ नॉर इंट्रोड्यूस कैपिटल। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी आंसर हो गया। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक मैथमेटिक्स लगाना है एंड यू विल एबल टू इजीली डू दी क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं दोस्त लोगों। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They computed IOC at 12% per annum as 12,000 रुपए 18। B introduced additional capital of 50,000 in the mid of the year. What was B opening capital? ये क्वेश्चन भी हमने ऊपर करा है, दोबारा कर लेते हैं एक बार ही अपन हम लोग। बी कितना कैपिटल लेके आए? 50,000 मिड ऑफ द ईयर में। इसका मतलब उसको 50,000 रुपए पे कितना इंटरेस्ट मिला? 50 इंटू 12% इंटू 6/12 इट्स कम्स टू 3,000 रुपीज। बी को इंटरेस्ट कितना मिला टोटल? 18,000। इसका मतलब 15,000 रुपए का जो इंटरेस्ट मिला है उसको ओपनिंग कैपिटल पे मिला है। ओपनिंग कैपिटल को हम एक्स माने तो एक्स इंटू 12% इक्वल्स टू 15,000। तो x को अगर सॉल्व करते हैं तो निकाल लेते कितना आ गया? एक मिनट, 15,000 डिवाइडेड बाय, तो x को अगर हमने सॉल्व करा तो x यहाँ पे आ गया 1.25 lakhs। दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। नथिंग टेक्निकल, सिर्फ मैथमेटिक्स है, थोड़ी सी अकाउंटेंसी। A is entitled to next question. A is entitled to commission at the rate of 10% of profits. The profit after charging his commission is 13,50,000. The commission due to A is simple. Let the profit X, हम उसमें से X minus 10% of X कर चुके हैं, which is 13,50,000। X को सॉल्व करेंगे, X सॉल्व करके आएगा 15 लाख रुपीज। उसके ऊपर हम 10% कमीशन निकालेंगे, comes to 1,50,000। This is answer. Simple mathematics, no accountancy, but since a part of the fundamentals of the partnership I have covered. B is entitled to commission 10% of profit after charging his salary but before charging his commission. His salary is 50. The profit after charging and commission is 9 lakh. Commission payable to B कितना है? अब बी को ये जो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है 9 लाख रुपीज, ये कब आ रहा है? इसमें से सैलरी भी लेस हो चुकी है और कमीशन भी लेस हो चुकी है। और हमें से कमीशन किस पे देनी है? हमें देनी है उस प्रॉफिट में जिसमें सैलरी कम हो चुकी है बट कमीशन कम नहीं हुई है। हम एक सिंपल केस लेते हैं। लेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बी एक्स। एक्स, अब उसको जो कमीशन मिलनी चाहिए थी वो किस पे मिलनी चाहिए थी? एक्स के ऊपर। इट मीन्स नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना होगा? एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स, जो हमारे पास कितना आ रहा है? 9 लाख। एक्स को सॉल्व करेंगे, एक्स आएगा 10 लाख। ए की कमीशन इसका 10%, इट कम्स टू 1 लाख रुपीज। तो आई होप ये आपको सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे कैसे करने हैं। I try to cover as many aspects as possible for the welfare of my students.